السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإياي فارهبون۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشيعه ومحبيه وأمته، خصوصا على وارث كماله غوثنا الغوث العاصم الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى سلطان الاولیاء سیدنا معین الدین حسن سنجری اجمیری وسیدنا ابو الحسن علی الشاذلی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی 40ویں آیت مبارکہ کی تفسیر کی جائے گی، مختصر سی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یا اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرا کرو۔ سبحان اللہ، یہ لفظی ترجمہ تھا۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم فرمایا تھا کہ جو کفر کرے گا اور جھٹلائے گا اللہ کی آیتوں کو، وہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ اصحاب یعنی نار والوں میں سے رہے گا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جو جھٹلائے گا، کفر کرے گا اللہ کی آیتوں کا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یا بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے، تو اسرائیل کا ذکر کیوں کیا؟ اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، جیسا کہ حضرت مدارک التنزیل میں سیدنا حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ پہلے ہم ذکر کریں گے تفسیر ابن عباس سے کہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو احسان کیا بنی اسرائیل پر، اس کا ذکر کیا، اس کو یاد دلا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا اولاد یعقوب، اے چلڈرن آف یعقوب، اذکروا نعمتی، یاد کرو، ریممبر مائی فیورز، یاد کرو میرے انعامات کو، اشکروا واحفظوا، یعنی شکر ادا کرو اور حفاظت کرو جو میں نے تمہیں انعام دیے، اس کی حفاظت کرو جو انعامات ہے۔ التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے تھے، یعنی کیا کیے تھے؟ علیکم بالکتاب والرسول ونجات من فرعون والغرق والمن والسلوى وغیر ذلک، کہ میں نے کتاب بھیجا تمہارے پاس، رسول بھیجا اور تمہیں نجات دی فرعون سے، غرق والغرق یعنی غرق سے، اور تمہیں منہ و سلوہ اتارا، وغیرہ ذالک، اور بہت سے تم پر انعامات کیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم وعدہ پورا کرو، یعنی جو اتم عہدی فی ھذا النبی، یعنی اس نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر وہ وعدہ پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، سبحان اللہ، یعنی ادخلکم الجنہ، کہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی فخافونی فی یعنی اب مجھ سے ڈرتے رہو اور یہ وعدے کو تھامے رکھو اور کسی اور سے مت ڈرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کسی اور سے ڈرو مت۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہیں حق بات کرنے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، ابھی بھی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی اس کو برا لگ جائے گا، یا وہ میں کمیونٹی سے الگ ہو جاؤں گا، یا میں یہ ایک جو ڈر ہے وہ ڈر نکالو، نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جاؤ، کسی اور چیز کا ڈر مت رکھو، میرا ڈر رکھو۔ اور جیسا کہ پچھلی آیتوں میں آیا کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب اللہ کا ڈر رکھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز بے پرواہ کر دے گا کہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اور نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔
जिसका हमने जिक्र किया था। इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने भी कुछ इसी तरीके की जलालैन शरीफ में मुख्तसर सी तफसीर की है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि या बनी इसराइल ए औलाद याकूब हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम नसफी मदारिक तंजील में फरमाते हैं कि जैसा हमारे आका दो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम बड़े मशहूर हैं, वैसे आपके नाम तो बहुत हैं, हत्ता कि इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 नाम लेकर उनकी वसीले के वो अशार लिखे हैं, सुभान अल्लाह। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से अंबिया हैं जिनके दो दो नाम रहे, जिनमें हज़रत याकूब का नाम इसराइल था और बनी इसराइल यानी याकूब की औलाद, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज्जत दी। और वैसे हज़रत ईसा अलैहि 4-5 अंबिया इकराम ऐसे हैं जिनके दो नाम रहे हैं, जैसे और हज़रत ईसा के तो कई नाम रहे, रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह और अल्लाहु अकबर, मसीह, ये नाम रहे। लेकिन फरमाते हैं कि बाज़ ऐसे अंबिया हैं जिनके दो नाम रहे हैं, जैसे हज़रत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद और अहमद बड़े मशहूर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम मसीह है और याकूब अलैहिस्सलाम का इसराइल है, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़ुन्नून है, और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़ुल्किफ्ल है। कुरान में ज़ुल्किफ्ल का नाम आया, या तो समझ जाना कि ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मुराद है। तो ये चीज़ें। अब यहाँ आइए, अल्लाह तबारक व तआला उरूज व ज़वाल का जिक्र कर रहा है बनी इसराइल का, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल में काफ़ी पैगम्बरों को भेजा और बनी इस्माइल में सिर्फ एक नबी को भेजा, और उनका वादा हर एक से लिया। हर नबी ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, जैसा कि तौरात में जिक्र आया, ज़बूर में जिक्र आया, इंजिल में जिक्र आया, हर एक से वादा लिया। तो यही वो याद दिला रहा है अल्लाह तबारक व तआला, या बनी इसराइल कुरू नेमती अल्लती, कि तुम वो नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर किया। ये तुम्हें बड़ी बड़ी नेमतें, तुम्हें फिरौन से बचाया, तुम्हें मन्ना और सलवा दिया, तुम्हें गर्क से बचाया, यानी इतनी एहसानात है अल्लाह तबारक व तआला के, उसको याद करो। और इसमें हमें भी एक सबक है कि जब नेमतें मिलती हैं ना, उसका जिक्र किया करो और उसकी हिफाजत किया करो, और उसका जिक्र जुबान से करो और दिल से उसमें हमेशा याद रखा करो। यानी दिल से याद रखने का मतलब यह है कि उसे भूलो मत, हमेशा याद रखो। तो ये एक जिक्र के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला हमें फरमा रहा है, और इसमें हमारी भी इसके अंदर तंबीह है, अगरचे कि उनको कहा जा रहा है कि तुम पे नेमत की गई। नेमतें इंसान को मिलती हैं, इंसान गंवा देता है, कभी एहसास नहीं होता उसके साथ नेमतें होती है। जैसे आंख की बीनाई है, सुनवाई है, अल्लाहु अकबर, बात करना है, चलना फिर, ये नेमतें हैं। उसका जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र। और सबसे बड़ी जो नेमत मुसलमानों के लिए है वो ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी है। उससे बढ़ के कोई नेमत नहीं है एक मोमिन के लिए कि उसका जिक्र करा करो। और उसका जिक्र का तरीका क्या है? सरकार पे सलातो सलाम भेजा करो, उठते बैठते, गाड़ी, बस बाद मकामात है जहाँ नहीं करना चाहिए, जिसका रफ़े हाजत है या दूसरे मकामात है। लेकिन अगर बेवजू भी हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। तो इस सरकार का ये जिक्र, ये सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए क्या है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना है इस दुनिया में। तो बहरहाल यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है, या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, कि हमने तुम पर किया, और जिक्र किया करो। जिक्र जुबान से जिक्र करना और दिल में याद रखना। इसीलिए सूफिया इकराम, जैसा रिवायत है कि सैयदना आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को एक जिक्र सिखाया था कि दिल की तरफ जोर दिया करो। और वो एक तरीका अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया इकराम के पास है कि जुबान से जिक्र करते हैं और दिल पर स्ट्राइक करते हैं कि उसको याद दिलाते, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जुबान भी है और दिल भी जारी हो गया, एक दूसरे से मुवाफिक हो रहा है, ताकि बाज़ वक़्त इंसान कामों में रहता है लेकिन दिल बयारो दस्त बकार, सूफिया इकराम फरमाते, दिल अपने यार से लगा हुआ होता है, अल्लाह उसके रसूल से लगा होता है, उसके हाथ पांव चलते रहते हैं। तो इस तरीके से हमेशा जिक्र किया करो, और नेमत का भी जिक्र हमेशा करना चाहिए। और सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए ज़ात पाक मुस्तफ़ा है। और इस आयत करीमा में मिलादुन नबी का भी एक हमें दलील मिलती है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, कि अपने रब की नेमतों का जिक्र किया करो। रसूलुल्लाह से बढ़ के कौन सी नेमत है हमारे लिए? सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रब की कसम,
हमारे लिए जो सबसे बड़ी नेमत है वो ज़ात पाक मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। ये बात एक इंग्रेव कर लो अपने दिलों पर कि रसूलुल्लाह से बढ़ के कोई नेमत नहीं, जो कुछ है उन्हीं की अता है। सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए, अगरचे कि बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है, उसमें हम अपनी भी इस्लाह करें कि अल्लाह तबारक व तआला जब उनको कह रहा है तो यहाँ पर दरअसल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र आया जा रहा है कि तुम पर मैंने जो नेमत की था उसका जिक्र किया करो, उसको भूलो मत। क्या जिक्र किया था कि सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर किताब में हर नबी ने हमारे नबी पाक का जिक्र किया। इंजील में जिक्र है, तौरात में जिक्र है, जबूर में जिक्र है, तुम वो कैसे भूल गए? एक इतनी बड़ी नेमत का जिक्र मैंने तुम्हारी किताबों में किया, सब कुछ किया, तुम भूल गए? तो यहां फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, एक मकाम पर कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यानी जिक्र अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, अल्लाह की इनायतों का जिक्र करो। और सबसे बड़ी नेमत फिर वही बात ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका जिक्र करो। वह इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि सुभान अल्लाह व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। क्यों? ऐसा जिक्र जो हमेशा किया जाए, जब अल्लाह का नाम ले तो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम ले, अल्लाहु अकबर। तो यही है कि जिक्र किया करो, सुभान अल्लाह। और ये जिक्र के तरीके जो औलिया किराम से हम तक चले हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को याद दिलाने के लिए होता है कि हमारी हैसियत क्या थी। अल्लाह अकबर, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मिल गया, इससे बढ़ के और क्या? अल्लाह, हमें एक चेन मिल गई। बहरहाल आगे अल्लाह तआला फरमाता है औफी बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, और तुम मेरे साथ किया हुआ वादा पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करूंगा। यानी तुमने जो वादे किए, अल्लाह वादे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कई अपने तौरात में ज़बूर में किए हैं। जैसा अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम पर इरशाद फरमाता है वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद लिया। क्या है? वबअसना मिनहुम इस्ना अशरा नक़ीबा, सुभान अल्लाह, कि हमने उनमें 12 सरदार कायम किए। और आगे अल्लाह फरमाता है वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लइन अक़मतुमुस्सलात व आतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमुहुम व अक़रज़तुमुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कि तुम नमाज को कायम रखो, क्योंकि नमाज भी अल्लाह के जिक्र के लिए होती है। अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज को कायम रखो मेरे जिक्र की खातिर। यानी जब जिक्र होता है तो जुबान और दिल दोनों जारी होना चाहिए, ये नहीं कि दिल हमारा कहीं है जुबान कहीं है। तो ये चीजें एक दूसरे से रखे। और ज़कात दिया करो और रसूल पर ईमान लाया करो। वो अज़्ज़रतुमुहुम, उनकी इज्जत करो, गिव देम अटमोस्ट रेस्पेक्ट। अज़्ज़रतुमुहुम, उनकी इज्जत किया करो अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कर्ज़ हसना दो। यानी अल्लाह को कर्ज़ हसना की क्या जरूरत है? नाउज़ बिल्लाह। यानी हम ये अगर माने लेंगे कि अल्लाह ताला मोहताज है तो ये कुफ्र है, बल्कि इसकी मानी है कि अल्लाह की बारगाह में जो गरीबों को देते हैं ना, जो सदका खैरात करते हैं, मुझे कर्जा है अल्लाह की बारगाह में। और अल्लाह तबारक व तआला हमें अदा करता है तो किस सूरत में अदा करेगा? अल्लाहु अकबर, इसका कोई अंदाजा ही नहीं। और जब अल्लाह की बारगाह में किसी को कुछ दें तो दिल पे बार मत लो, बल्कि खुश हो कि अल्लाह मुझे इस लायक किया। बहरहाल आगे फरमाता है लउकफ्फिरन्न अन्कुम सय्यात व लउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को मेट देगा, सफा कर दे। तो जो गुनाह किए अगर अच्छे काम करोगे मेट देगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल आता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जिनके नीचे जन्नात हैं और नहरें हैं। सुभान अल्लाह। फमन कफर बाद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द दल्ल सवाअ सबील, इस अहद के बाद तुमने अगर उसको तोड़ा तो ये तुमने कुफ्र किया। अल्लाहु अकबर, और वो जरूर सीधी राह से भटके हुए हैं। तो ये उनको याद दिलाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। आगे इंशाअल्लाह इसको मैं समेटता हूँ। व इय्या फरहबून, और मुझसे डरा करो। यानी डर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का होना चाहिए, किसी और का नहीं। क्योंकि आज दुनिया में लोग सच बात बोलने से डर जाते हैं। हत्ता कि किसी पर गलती से कोई इल्जाम लगा रहा हो, दूसरा आदमी डर जाता, नहीं भाई मैं खामखाई में परेशानी में आ जाऊंगा। तो इस तरीके से डरो मत। इस तरह बनी इसराइल को भी कहा जा रहा है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने में दिल तो मान रहा, लेकिन अब अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को देखकर तुम डर रहे हो। तुम्हें खदशा है तुम्हारी बिजनेस का, तुम्हें खदशा है तुम्हारी बीवी बच्चे तुमसे छूट जाएंगे, तुम्हारे साथी छूट जाएंगे। तो डरो मत तुम,
तुम मेरे से डरो, सुभान अल्लाह। और मेरे से डर, क्योंकि वार्निंग क्या होती है मालूम है, बहुत जबरदस्त उसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि इंसान का उसके अंदर ग्रोथ होता है, उसके अंदर उन्हें एडवांसमेंट लाता है। जब पता चल जाता है कि भाई तूफान आने वाला है, एक वार्निंग आ रही है, इंसान अपने आप को सिक्योर कर लेता है जो भी तरीका है। इसी तरह आप जॉब जाने वाली है, अरे भाई आई हैव टू डू सम सर्टिफिकेशन बिफोर आई लूज माई जॉब, एक वार्निंग बाज़ एक उसके लिए एक हेड्स अप होता है कि भाई जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, सुभान अल्लाह। तो ये एक अल्लाह की तरफ से वार्निंग है उनको। इस तरह इसमें हमारे लिए भी वार्निंग है कि हम किसी से न डरें। बाज़ वक्त कोई बुराई देखते हो तो रुकाओ, अगर नहीं तो बोलो, नहीं तो तीसरा जो दर्जा है अदअफुल ईमान, दिल से बुरा जानो, सुभान अल्लाह। ये तीनों में से कोई एक जो जिस मकाम पर है, अगर कोई रुका सकता है तो रुकाए उसको। ऐसे नहीं कि हम बरसात की मेंढकों की तरह नहीं कि बाद में निकल के आ रहे हैं, हाँ मैं बोलता था करता था। बहरहाल ये तमाम बातों का एक जो मेरा फहवा है तकरीर का, जो मेरा मकसद है, जो आउटपुट ये है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को एक वार्निंग भी दे रहा है कि तुम जिक्र करो, और उसमें हमें भी इसके अंदर सबक है कि हम भी जिक्र से अपने आप को खाली ना रखें। हमारा दिल से जिक्र करो, यानी भूलो मत, और जुबान से उसका इकरार करो, और हमेशा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है, उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, कोई नेमत नहीं। बस उसका लिहाज करो कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना चाहना है। अल्लाहु अकबर। तो हम सहाबा की जिंदगी की हम मुताला करेंगे, कैसा चाहते थे, अपनी जानों से ज्यादा चाहते थे। हम उस मकाम पे तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जितना हो सकता है हमारे हुजूर का तज़किरा किया करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान किया करो कि अल्लाह के वो बेहतरीन बंदे हैं और अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों में तेरा खौफ डाल, किसी का खौफ ना रखे या रब्बुल आलमीन। हमें हमारे दिलों को तेरे जिक्र की हलावत अता फरमा, जुबानों को हलावत अता फरमा। या अल्लाह हम पर करम फरमा, फजल फरमा, रहम फरमा। तमाम आलम इस्लाम पर या अल्लाह जो भी मुसीबत आने वाली है मेरे मालिक, उन मुसीबतों को दूर फरमा दे मेरे मालिक। हम सब का रिश्ता नबी पाक की गुलामी से जोड़ दे मेरे मालिक। हम रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाएं। या अल्लाह हमें रसूल पाक का सच्चा गुलाम बना दे मेरे मालिक। या अल्लाह जो भी हमसे गुनाह सरदर्द हुए हैं, खुसूसियत से मेरे मालिक मुझ गुनाहगार बदकार सियाहकार से मेरे मालिक दौरान तफसीर, या अल्लाह जो आपकी नज़र में हो या मेरी नज़र में हो या मखलूक की नज़र में आ गई हो, या अल्लाह अपने ज़िम्मे करम पर लेकर माफ़ फरमा दे, हम सब को माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह नबी अमीन बिहुर्मत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी वमा अलैना इल्लल बलाग।